Good evening, students. We have done yesterday till here. We have done, that is social revolution. This was the last lecture which was posted yesterday on Moodle. So today we will start up with the topic of functions of human resource development. We have up till now in third unit, which pertains to human resource development, we have done introduction in detail, concept in detail, then objectives, then goals, then benefits. This is the benefit last topic that we have done. Today we shall be doing functions, and to some extent we will be doing mechanism also, right? So let us begin. Functions of human resource development. Number one, it says develop a HR philosophy for the entire organization and get the top management commitment to it openly and consistently. A very important topic, a very important point rather. Amongst the function of human resource development, the ultimate aim is to develop the people, right? Now, developing a HR philosophy for the entire organization, that the entire organization is development oriented, and for this you have to get support from the top management. क्योंकि जब तक टॉप मैनेजमेंट नहीं चाहेगा, ये जो एचआरडी फिलोसफी है डेवलपमेंट की, ये परमिएट पूरी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो सकती. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है. एंड दैट शुड बी कमिटेड टू इट ओपनली एंड कंसिस्टेंटली. ये नहीं कि एक बार कुछ नया सोचा हमने, हाँ भाई लोगों को डेवलप करना है, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम करा दिया एंड दैट्स इट. नो, देयर हैज टू बी, दैट्स व्हाई द वर्ड इज बीन यूज कंसिस्टेंटली, यानी कि लगातार देयर शुड बी एफर्ट टू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इट्स डेवलपमेंट ऑफ द पीपल और दी HR. सो देयर हैज टू बी अ कंसिस्टेंट एफर्ट. लगातार निरंतर कोशिश करनी है लोगों को बेहतर बनाने की, डेवलप करने की, जिससे कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को वी आर एबल टू डेवलप द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ सेकेंडली, कीप इंस्पायरिंग द लाइन मैनेजर्स टू हैव अ कंसिस्टेंट डिजायर टू लर्न एंड डेवलप. नाउ व्हाट इज द लाइन and staff? Let me tell you in short. Staff is a support staff. For example, HR is a support staff. Quality is a staff is a like HR, finance. These are all staff function. Let us assume that it is a production based unit. एक कंपनी है जो कोई भी XYZ कोई भी आर्टिकल या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, राइट? सो लाइन मैनेजर्स विल बी हु? द प्रोडक्शन मैनेजर्स एंड द टेक्निकल पीपल, दोज हु आर एक्चुअली मेकिंग द प्रोडक्शन हैपन, दे आर द लाइन मैनेजर्स. Or the supervisors or the engineers or the technical people, those who are making it happen. कि कोई प्रोडक्शन होना है किसी प्रोडक्ट का, उसको किया जा रहा है. सो दे आर द लाइन. स्टाफ होता है सपोर्टिंग, जैसे फाइनेंस वाले हो गए, HR वाले हो गए, दे आर द स्टाफ फंक्शन बोलते हैं. तो लाइन एंड स्टाफ में ये फंक्शन में आपको पता होना चाहिए. सो कीप इंस्पायरिंग द लाइन मैनेजर्स टू हैव अ कंसिस्टेंट डिजायर टू लर्न एंड डेवलप. देखिए, न्यू टेक्नोलॉजी इज कमिंग. There is a continuous development of the new technology and ways of doing things technically. So these line managers should be inspired enough to learn more and more and to develop themselves. If they develop, naturally they will develop their subordinates also, and there will be a learning atmosphere, a development oriented atmosphere for the organization. इसीलिए अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इस सेकंड पॉइंट को मैं फर्स्ट पॉइंट से जोड़ता हूं कि मान लीजिए हम डेवलप करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. फॉर एग्जाम्पल, वी वांट टू अपग्रेड अवर टेक्नोलॉजी. सो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज द, यू कैन से, विल बी द पैशन और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइन मैनेजर्स, जो टेक्निकल लोग हैं, जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है, क्योंकि टेक्निकली वो इन चीजों को संभालेंगे, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे. बट डू यू थिंक दैट इज ओनली पॉसिबल? That is not possible without the support of the top management, जैसा कि हमने पहले पॉइंट में दिया, क्योंकि उसमें खर्चा होगा. There will be finances involved in it. So naturally these things, that's why the very first important point was that there should be a support from the top management. Then only these things can happen. So line managers consistently they have a desire to learn and develop. This kind of atmosphere has to be created so that there is a continuous effort. There is a continuous effort to develop the organization in terms of technology as well. Then constantly plan and design new methods and system of developing and strengthening the HRD climate. देखिए, HRD climate तभी डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो सकता है जब हम नए नए तरीके सोचे, न्यू मेथड्स को इवॉल्व करें, न्यू सिस्टम्स को इवॉल्व करें, और इन सब के लिए टॉप मैनेजमेंट का भी सपोर्ट चाहिए. और कंसिस्टेंटली हम ये कोशिश करें कि हम सिस्टम एज अ होल
ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा क्लाइमेट क्रिएट करे कि विच इज एंटायरली डेवलपमेंट ओरिएंटेड। सो नई नई टेक्नोलॉजीज आए, नए नए सिस्टम डेवलप हो, नई सोच आए, ठीक है, इनोवेशन आए, ये तमाम चीजें एचआरडी क्लाइमेट को जस्टिफाई कर सकता है, करेगा, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड फंक्शन, कि वो माहौल पैदा करना जिसके द्वारा डेवलपमेंटल एफर्ट्स सक्सेसफुल हो सकते हैं। देन बी अवेयर ऑफ बिजनेस, सोशल एंड अदर गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्ट ऑल देयर एचआरडी एफर्ट टू अचीव दीज गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस गोल है कि भाई हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी ये लाना चाहते हैं इस साल फॉर द फाइनेंशियल ईयर, या हम टारगेट ये करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। तो ये बिजनेस ओरिएंटेड हो गया। सोशली, यस, वी वांट टू सर्व द सोसाइटी, वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी, हाउ वी आर गोइंग टू डिस्चार्ज इट, एंड देयर कैन बी एनी अदर गोल एज वेल, सो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड डायरेक्ट ऑल द एचआरडी एफर्ट टू अचीव दिस गोल। सो अगर हमारा कोई बिजनेस का गोल है, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड है, टर्नओवर से रिलेटेड है, नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि बिजनेस ओरिएंटेड है, इन तमाम चीजों के लिए एचआरडी एफर्ट करेगा। दैट इज वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ एचआरडी। क्योंकि देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड वट एवर इज गोइंग टू हैपन, इट हैज टू गोइंग टू हैपन थ्रू द एफर्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। सो डेवलपमेंट अल्टीमेटली हैज टू रेस्ट विद द responsible, as a responsible, it has to rest with the development of the human beings, those who are working in an organization, चाहे वो बिजनेस गोल हो, चाहे सोशल सोसाइटी को सर्व करने का गोल हो, चाहे वो कोई भी गोल हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अल्टीमेटली इट हैज टू बी मटीरियलाइज्ड थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। दिस इज द फोर्थ फंक्शन। देन वी विल कम अप टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज योर, लेट मी टेल यू, एंड दैट इज योर मॉनिटर इफेक्टिवली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एचआर सब सिस्टम। एचआर के बहुत सारे सब सिस्टम्स हैं, डेवलपमेंट के बहुत सारे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एस्पेक्ट है, जब वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नाउ while we appraise the performance of a person in a particular period, we are also trying to identify what are his shortfalls. So if we are able to successfully identify his shortcomings, then it can be upgraded by providing him proper training, and proper instructions could be given to that particular HR, human resource or person, so that he is able to overcome his shortcoming and can contribute significantly towards the development of the organization. So monitoring effectively the implementation of various HRD system. तो जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टम है, उसको डेवलपमेंट ओरिएंटेड बनाना है। दिस इज द एग्जांपल आई एम गिविंग। डेवलपमेंट ओरिएंटेड कब बनेगा? जब हम लोगों की कमियों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तभी हम उनको बेहतर ट्रेनिंग देंगे, तभी हम उनको, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा व्हाट शॉर्टकमिंग्स वी आर हैविंग, वी कैन नॉट डेवलप अ पर्सन। सो जितने भी सच सिस्टम है, ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, चाहे वो करियर पाथ है कि भाई आने वाले समय में बाय प्रमोशन, बाय हार्डवर्क अ पर्सन कैन राइज टू व्हाट लेवल, करियर पाथ डिजाइन करना, ठीक है। किसी भी एस्पेक्ट में या कोई भी चीज, अल्टीमेटली जो भी एचआर सब सिस्टम का हिस्सा है उसको मॉनिटर करना है। हमें देखना है कि कंटिन्यूअसली उसमें इफेक्टिवनेस आ रही है या नहीं। वर्क विद यूनियंस एंड एसोसिएट एंड इंस्पायर देम। जितने भी वर्कर्स और उनके यूनियंस होते हैं, उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनसे बातचीत करते रहना है, ठीक है। उनको बताना है, इंस्पायर देम का मतलब यह है कि उनको मोटिवेट करना है, जिससे कि वो अपना बेहतर, क्योंकि देखिए अगर ट्रेड यूनियंस, जो सो कॉल्ड ट्रेड यूनियंस, जो वर्कर्स की यूनियंस है, अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली नहीं चल पाएगी। सो अल्टीमेटली एचआरडी का ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि उन यूनियंस से, जिनके मेंबर है हमारे एम्प्लॉइज या वर्कर्स, उनसे हमारा लाइजन अच्छा होना चाहिए, उनसे हमें एक अच्छा रिश्ता कायम करना चाहिए। बाय दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्योंकि अगर वो स्ट्राइक करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे या किसी भी तरह का अनरेस्ट क्रिएट करेंगे, सो इट विल गो नेगेटिवली अगेंस्ट एवरीबडी, टुवर्ड्स द सोसाइटी, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एवरीबडी। सो उस चीज को भी करना, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो वर्क विद यूनियंस एंड एसोसिएशन एंड इंस्पायर देम, यानी कि उनको मोटिवेट करते रहना है हमें। देन कंडक्ट ह्यूमन प्रोसेस रिसर्च
organizational health surveys and renewal exercise regularly. Conduct human process research, यानी कि लोगों में क्या वाकई डेवलपमेंट आ रहा है कि नहीं, इसका इंपेरिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा भी होना चाहिए. किसमें अगर कितना डेवलपमेंट हुआ है, किसी डिपार्टमेंट में अगर टारगेट गया है तो स्टैटिस्टिकली उसको ऑब्जर्व करना कि वाकई डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं. ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ सर्विस, यानी कि हमारी जो फाइनेंशियल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, वो कैसी है, उसका डेटा इकट्ठा करना, ये भी एचआरडी का काम है. रिन्यूअल एक्सरसाइजेज, अगर कमियां हैं तो उनको कैसे रिन्यू करना है, दूर करना है, ठीक है, नए सोच के साथ उसको इंप्लीमेंट करना है जिससे कि कमियों को दूर किया जा सके. तो रिन्यूअल एक्सरसाइजेज भी रेगुलरली हमें करते रहना है. तो हमें रिसर्च करना है लोगों के बारे में, कितने बेहतर बन रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ का मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की फिजिकल एंड फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है. रिन्यूअल एक्सरसाइजेस कि क्या हम जो कमियां हैं उनको दूर कर पा रहे हैं या नहीं. सो ऑल दीज थिंग्स, गैमेट ऑफ थिंग्स आर also one of the functions, important functions of the human resource development. And of course, influence human resource policies by providing necessary inputs to the human resource development and by the top management. Human resource policies को influence किया जा सकता है तभी जब हमें top management का support मिले. और साथ ही कह रहा है by providing necessary inputs to the human resource development by the and the top management. Ultimately, it has to be top management directed things. क्योंकि फाइनेंसेस इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है. तो जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो मेन उद्देश्य है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है. इन्फ्लुएंस ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, इसका मतलब यह है कि हम पॉलिसीज को बेहतर से बेहतर बनाए इन टेंडम विद द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, इन टेंडम विद द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स, कवरिंग ऑल द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स, और पॉलिसीज को बेहतर से बेहतर इंप्रूव करते रहे, बनाते रहे. और ये जो इनपुट्स आते रहेंगे, हमें जो फीडबैक मिलता रहेगा, अकॉर्डिंगली हम फर्दर उसको वी कैन मेंड इट, वी कैन मेक इट बेटर एंड बेटर. सो दिस एंड विद योर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव ऑन टू द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. दैट्स इट फॉर टुडे.